Hello friends. So now we will move towards our next lecture, which is lecture number 12, the Weber's theory of religion, its criticism and its contemporary relevance. In the last lecture we have already studied the functionalist theories of religion and the relevance of those theories. Now the major difference between the functionalist theory and the Weber's theory is that the functionalist theory basically they advocate that there should not be any change in the society, while they advocate that the status quo needs to be maintained in the society. And the basically they advocate that development and progress should be maintained, should be allowed to happen in the society, and that is only made possible if the status quo is maintained, if the political, economic, social, all the conditions of the society will be as it is, will be maintained as it is. So they basically are conservative in nature, while the Weber's theory that is basically advocates the social change in society. So he advocates that really along with the various political, economic, and the various political, economic, and social factors, it is the religion the which is the primary cause behind the rise of capitalism in. So now we will move towards the Weber's theory of religion. So introduction to Weber's theory of religion. In early 1900s, Max Weber published a book which is Protestant Ethics and Spirit of Capitalism, which revolutionized the understanding of existing relationship between religion and economy. So he basically, Max Weber, he established a relationship between religion and economy, just like Karl Marx. But there is a big difference between Karl Marx and Max Weber, which will definitely I will prepare another lecture on the difference between Durkheim and Weber, Durkheim and Marx and Weber, difference between all those sociologists on different topics. I will definitely prepare a lecture on one or two lectures on the difference between the sociologists on different topics. But you should understand here that Marx says that it is the economy which is responsible towards the generation of religion, but Weber says the reverse. So he says that it is actually the religion which is responsible for the rise of capitalism. So the religious ethics as a system of ideas, they generate towards another system of ideas which are capitalist ideas in the European society. So he put forth a new assumption which considered the Protestant ethics. So basically he says that it is in the religion, it is the Protestant ethics which is the ideas of Protestantism, or the ethics of Protestantism is found to be the most conducive towards the generation of capitalism. So he has observed link between Protestants and capitalists, and notice entrepreneurs. So he has noticed that entrepreneurs, skilled workers, and professionals, they in Europe belongs to Protestantism. So therefore he brings out the conclusion that there should be something in Protestantism that is conducive towards the emergence of capitalism. So we will study what are those ethics which are conducive. So but you should also note that Weber doesn't focus only on the spirit, but he also says that it is not only spirit but the substance. That means not only the values but also the infrastructure which are conducive, which are required, and which are conducive towards for the emergence of capitalism. So both spirit as well as substance are required for the emergence of capitalism. Thus, his theory of religion is a multi-causal theory. So he says that there are plurality of causes which are responsible for the emergence of capitalism. Uh, to prove his theory of religion, or to prove the relation between religion and capitalism, he develops the ideal types of the Protestantism. So in Protestantism, he primarily focused on Calvinism as a sect. So basically, in Protestantism, Calvinism is a sect, and he primarily says that it is Calvinism in Protestantism which is the most whose ethics are the most conducive towards the ideas of capitalism.
So he has formulated the ideal types of Calvinism as well as the ideal types of capitalism, and then he has bring forth the relation between both the ideal types. So ideal types of Calvinism are, so in order to explore the possible correlation, Weber developed the ideal types of capitalism and Protestant ethics. For this purpose, he chose Calvinism as the most original form of Protestant ethics for this purpose. Doctrine of protest. In the ideal types of capitalism, he says that there are many doctrines which he has taken out in his theory, and he has said that these are the ideal types because he cannot study the entire religion. So he basically formulated the essence or the most important point which are required to be proved that these ethics are basically conducive for the generation of capitalism. So what are those ethics of Calvinism? So it is the doctrine of predestination, it is the notion of calling, it is this worldly asceticism, it is the rejection of other worldly aspects, it is the other notions which I have written in my lecture. So we will understand all those ethics, all those points point by point. So in the doctrine of predestination, आप ये समझ लीजिए कि इसमें मैं आपको बहुत छोटे से तरीके से समझा देता हूँ कि बेसिकली इसमें ये बोलते हैं, वेबर बोलते हैं कि ये पहले से ही फिक्स हो जाता है कि हर बंदे की क्या भविष्य होने वाला है, कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, इट इज़ प्री डिसाइडेड बाय द गॉड. सो ये कहते हैं कि गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बट जो गॉड ने डिसाइड किया है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि गॉड क्या चाहता है वो किसी को नहीं पता. तो इतनी एंजाइटी हो जाती है लोगों को ये सोचकर कि हु इज़ दैट पर्सन हु विल गो टू हेवन, जो हेवन जाएगा अपने कर्मों के द्वारा, ऐसा कौन बंदा होगा. वो जो अनसर्टेनिटी है ना कि कौन जाएगा, क्योंकि गॉड ने डिसाइड कर लिया है कौन हेवन जाएगा कौन हेल जाएगा. तो हु विल गो टू हेवन, हु विल गो टू हेल, दैट गॉड हैज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड. प्री डेस्टिनेशन मतलब आपका डेस्टिनेशन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है. तो वो क्योंकि प्री डिसाइडेड है तो लोगों को इससे एंग्जाइटी हो जाती है, इस अनसर्टेनिटी से. तो क्योंकि एंग्जाइटी हो जाती है तो लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लोग सोचते हैं कि अगर आप इतनी मेहनत करेंगे और अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, क्योंकि गॉड कहता है कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने वाला आदमी और जिसको सक्सेस मिली है इस दुनिया में, जो सक्सेसफुल है, जो पर्सन, वो अगर वो सक्सेसफुल है तो इसका मतलब गॉड की कृपा है उसके ऊपर. तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो अपने वर्क में, अपने कॉलिंग में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप हेवन जाने वाले हो मरने के बाद. तो इससे क्या होता है ना, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अर्न करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये अपने आप को ये अनसर्टेनिटी दूर कर पाएँ और ये प्रूव कर पाएँ, अपने आप को प्रूव कर पाएँ कि दे आर द वंस हु आर चूजन बाय गॉड टू गो टू हेवन. सो आई विल रीड आउट. In Calvinism, some people are chosen by God to enter into heaven, and nobody can know whether one is chosen or not. Only way to know that they are selected is to gain more and more wealth. Making money was an indication of success. आप खुद ही सोच लीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशन में अगर ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेसफुल माना जाता है. तो जैसे किसी को कहते हैं ना करोड़ रुपए का पैकेज लगाया आईआईटी से, तो आईआईटी में जाना क्यों इतना एक रेप्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे इतना पैकेज लोगों को मिलता है, तो इसलिए रेप्यूटेशन उससे एसोसिएट हो जाती है. तो बेसिकली मेकिंग मनी वॉज एन इंडिकेशन ऑफ सक्सेस इन वंस कॉलिंग, एंड सक्सेस इन वंस कॉलिंग मेंट दैट द इंडिविजुअल had not lost grace in God's sight. To be even more successful in terms of one's calling means reinvesting profits in the business. तो सक्सेसफुल कैसे होगे कि जो भी आप अर्न कर रहे हो उसको उसी में इन्वेस्ट करते रहो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सको. Anything that divert people from their calling was condemned. So that is the doctrine of predestination. Now another doctrine is notion of calling. So ये कैल्विनिस्ट एथिक्स में क्या बोला, मतलब कैल्विनिज्म रिलीजन क्या बोलता है कि वर्क इज़ नॉट अ मेयर थिंग. वर्क केवल एक तुच्छ चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, बट अ मिशन है, आपकी ज़िंदगी का मिशन है. कॉलिंग है, कॉलिंग मतलब कॉलिंग ऑफ गॉड. गॉड बुला रहा है आपको, गॉड कह रहा है ये करना है आपको. दे रिगार्डेड वर्क एज वर्शिप. वर्क वर्शिप है. वर्क शुड बी डन विद डिवोशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. अगर आप वर्क करोगे तो इससे आप गॉड की ग्लोरी को, यानी कि गॉड की तरफ अपने आप को डिवोट कर सकते हो. सो नोशन ऑफ कॉलिंग कि वर्क शुड बी एट मोस्ट एम्फेसाइज्ड.
वर्क को सबसे ज़्यादा इसमें एम्फेसाइज किया गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कैल्विनिज्म में. तो दैट द नोशन ऑफ कॉलिंग. Another another doctrine is this worldly asceticism. This worldly asceticism आप समझ लीजिए, दिस वर्ल्डली मतलब इस वर्ल्ड में रहते हुए, asceticism मतलब आपको इसी वर्ल्ड में रहना है और इस वर्ल्ड में रहते हुए आपको इच्छाओं का त्याग करना है. कौन सी इच्छाओं का त्याग करना है? हेडोनिज्म नहीं करना है, मतलब लग्जरी नहीं करनी है आपको, बेमतलब में पैसा अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है आपको, बहुत घूमना फिरना नहीं है आपको, बहुत लग्जरियस फूड नहीं खाना है. तो यानी कि विथ एंकरेजिंग एब्सटिनेंस फ्रॉम लाइफ प्लेजर्स, ऑस्टियर लाइफस्टाइल मतलब साधु वाली जिंदगी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है. दैट इज दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म. रिजेक्शन ऑफ अदर वर्ल्डली एस्पेक्ट्स. फॉर प्रोटेस्टेंट्स अंडरस्टैंडिंग गॉड इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. तो ये कहते हैं कि गॉड को आप नहीं समझ सकते, गॉड क्या चाहता है, क्योंकि गॉड एक एज पर प्रोटेस्टेंट गॉड्स आर बेसिकली ट्रांसेंडेंटल इन नेचर. सो एज ह्यूमन माइंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी, आप नहीं समझ पाओगे गॉड. दस दे रिजेक्टेड मिस्टिसिज्म एंड स्ट्राइव फॉर ग्लोरी. तो इसलिए क्योंकि गॉड नहीं समझ सकते हो आप, गॉड के बारे में कुछ नहीं जान सकते हो, तो आप कम से कम यहाँ पे तो जिस दुनिया में आप हो वहाँ पे तो अपने आप को सक्सेसफुल बना दो ताकि आप गॉड के प्रति अपने आप को डिवोट कर पाओ. तो बेसिकली दैट इज द रिजेक्शन ऑफ अदर वर्ल्डली एस्पेक्ट्स. मतलब इनर इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना है और अदर वर्ल्ड को रिजेक्ट करना है. देन वेल्थ हैज टू बी कंजर्व्ड एंड डिवोटेड टू गॉड. सिंपल ये मैंने समझा. एंड गॉड क्रिएटेड, और गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया फॉर हिज ऑन ग्लोरी, अपनी ग्लोरी यानी कि अपने ग्लोरी के लिए, ताकि लोग उसमें काम करें और उसको अपने कर्म को गॉड को समर्पित कर पाए. तो अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी ग्लोरी मतलब आप समझ लीजिए अपने आप को वो करने के लिए, ताकि लोग गॉड को माने, गॉड को समझे और गॉड जो चाहता है वो करें. Okay, so these are the ideal types of Calvinism. Now we will move towards the ideal type of capitalism. So ideal types of capitalism, accumulation of wealth. Capitalism हम समझते हैं कि wealth का accumulate करना है. Profit को, making of profit requires a strong hard working force. Work in modern capitalism. आप इसको डायरेक्टली अपने एग्जाम में लिखिए कि भाई एक्यूमुलेशन करना है वेल्थ का, प्रॉफिट, अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, हार्ड वर्किंग फोर्स रिक्वायर करता है. वर्क इन मॉडर्न कैपिटलिज्म इज ऑर्गेनाइज रेशनली. वर्क रेशनली ऑर्गेनाइज्ड है, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपरली लॉज हैं, इसके द्वारा वर्क गवर्न होता है. वैल्यूज प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी आपको ये वैल्यू करता है और आपको प्रोडक्टिव रहना अपने काम में. वर्क इज फॉर एन एंड कॉल्ड प्रॉफिट. वर्क क्यों किया जा रहा है? ताकि प्रॉफिट कमा पाओ कैपिटलिज्म में. ये कैपिटलिज्म के बारे में समझ रहे हैं. टाइम को सेव करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है. मनी बिगेट्स मनी, मनी से मनी कमाना है, मनी को खर्च नहीं करना, मनी से मनी कमाना है. कैपिटलिज्म ऑनर्स इंडिविजुअलिज्म, आप इंडिविजुअल को ऑनर करता है. इनोवेशन करना है, प्रॉफिट को ऑनर करता है, एंड हार्ड वर्क. सो ये तो बहुत एक सिंपल एक आइडियल टाइप्स जो उसने बताए कैपिटलिज्म के, आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने एग्जाम में. सो आइडियल टाइप्स हेल्प वेबर टू गो फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस with different religion, which helped them in testability of his hypothesis. High Protestant ethics led to rise of capitalism. तो बेसिकली उसने क्या किया कि उसने he has formulated the ideal types of the Calvinism and capitalism, and he has studied different religions in the world and formulated, and according to his ideal types of Calvinism or the ideal types of religion, which are required, which he thinks that which are required for the generation of capitalism, and he tried to see whether those ethics are present in the other world religions or not. So in this way he goes for comparative analysis with different religion, which helped him in testability of his hypothesis. तो इससे उसकी hypothesis की testability prove हो गई कि प्रोटेस्टेंट के ही एथिक्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट वर्ल्ड रिलीजन्स में वो एथिक्स प्रेजेंट ना हो, क्योंकि जहाँ पे भी कैपिटलिज्म प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये एथिक्स होंगे. वो ये तभी प्रूव कर पाएगा जब वो ये प्रूव करेगा फॉल्सिफिकेशन बेसिकली, कि जब ये प्रूव करेगा कि इसके अलावा कुछ एथिक्स होंगे तो वो कैपिटलिज्म इंड्यूस नहीं करेंगे. तो ये यानी कि ये एथिक्स ऐसे हैं जो कैपिटलिज्म इंड्यूस करते हैं. So relation between ideal type of Calvinism and ideal type of capitalism. So
before moving towards the understanding the different religions in the world, how he has understood the ethics of those religions, and how he has said that those ethics do not contribute towards the emergence of capitalism. He relates the ideal type of Calvinism with ideal type of capitalism. So उसने बोला कि डिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म बोला कैल्विनिज्म में होता है, जिसमें वो डिसिप्लिन प्रमोट करते हैं, तो इससे सेविंग्स होती हैं एंड मच नीडेड री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटलिज्म। इससे कैपिटलिज्म में आप री इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप सेविंग कर सकते हो। तो ये यानी कैपिटलिज्म से रिलेट हो गया। दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म ऑफ कैल्विनिज्म हैज बीन रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, ये और लिख दिया है गलती से, ये ऑफ है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, तो प्रीडेस्टिनेशन मैंने आपको बताया कि आपको कि गॉड, क्योंकि गॉड का नहीं पता कि गॉड ने किसको चूज किया है हेवन जाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं अपनी वर्क में। तो दैट रिजल्ट्स इनटू अनसर्टेनिटी एंड हेंस प्रोड्यूस एंजाइटी। देयरफॉर पीपल स्टार्टेड टू एक्सेल इन देयर फील्ड्स टू बी श्योर दैट दे आर द चूजन वंस बाय द गॉड टू गो टू हेवन। देयरफॉर इट प्रमोट्स कैपिटलिज्म। इससे कैपिटलिज्म प्रमोट होगा क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो कैपिटलिज्म आएगा इससे। नोशन ऑफ कॉलिंग मेड देम हार्ड वर्किंग, इससे हार्ड वर्किंग हो गए। सिमिलरली अदर एथिक्स ऑफ कैल्विनिज्म वर ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। आप ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जस्ट देयर इज कोइंसिडेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड टेनेट्स ऑफ कैल्विनिज्म। नाउ आफ्टर रिलेटिंग कैल्विनिज्म एंड कैपिटलिज्म, वेबर, हाँ इसमें वेबर ने कहा कि स्पिरिट मे नॉट बी एनफ, spirit may not be enough for capitalism to get generated. In addition to spirit, substance must also be present. तो वो कह रहा है कि सब्सटेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए स्पिरिट के साथ। क्या सब्सटेंस होना चाहिए? सब्सटेंस वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था यूरोपियन कंट्रीज में इन दी फॉर्म ऑफ न्यू फैक्ट्री सिस्टम। वहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम आ गया था, न्यू टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के न्यू टेक्निक्स आ गई थी, न्यूली इन्वेंटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड मशीन्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था फॉर स्टेबल गवर्नेंस, और एक कंज्यूमर मार्केट था। तो ये सारे जो कंड्यूसिव मटेरियल कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ कैपिटलिज्म। सो नॉट ओनली स्पिरिट बट ऑल्सो सब्सटेंस। तो ये बहुत साइमल्टेनियसली जब प्रोड्यूस प्रेजेंट होंगे तभी कैपिटलिज्म प्रोड्यूस हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। So typologies of religion according to Weber. So to prove his correlation between religion and capitalism, Weber has done historical comparison studies of different religions in the world. He has categorized different religions on the basis of presence of spirit and substance. तो मैंने जैसा आपको बताया कि दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। If both are present, then that condition is favorable for only that condition is favorable for the generation of capitalism. तो आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बट आप देख लीजिए हिंदुइज्म में बोलते हैं वेबर की स्पिरिट नहीं है, सब्सटेंस तो है, मतलब मटेरियल कंडीशंस हैं, बहुत पैसा है, फैक्ट्रीज भी हैं, और जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था ना, आपको मालूम है, तो पैसा था और फैक्ट्री सिस्टम भी था, और क्या था, सब्सटेंस क्या था, फैक्ट्रीज भी थी, और डेमोक्रेसी भी आ गई थी 47 में, तो डेमोक्रेसी भी आ गई थी। उससे पहले ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, तो मटेरियल था बट सब्सटेंस स्पिरिट नहीं थी। स्पिरिट हम देखते हैं कि क्या नहीं, कैसे नहीं थी। मुस्लिम्स में भी सेम ही है कि सब्सटेंस है, स्पिरिट नहीं है। ज्यूज में, जुडाइज्म में क्या है, स्पिरिट है बस सब्सटेंस नहीं है, वहाँ पे उल्टा है। कन्फ्यूशियनिज्म, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसमें भी ये बोल रहे हैं कि स्पिरिट नहीं है, सब्सटेंस है। कैथोलिकिज्म में बोल रहे हैं कि स्पिरिट नहीं है, सब्सटेंस है, दोनों में स्पिरिट नहीं है। कन्फ्यूशियनिज्म इज नॉट अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये चाइना में कन्फ्यूशियन पाया जाता है रिलीजन। कैथोलिक इज अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, और प्रोटेस्टेंट्स प्रेजेंट थे, इसलिए कैपिटलिज्म हो गया था। तो कैथोलिक में भी नहीं है, कन्फ्यूशियन में भी नहीं है, ज्यूज जुडाइज्म में भी नहीं है, मुस्लिम हिंदू किसी में नहीं है। प्रोटेस्टेंट में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तभी कैपिटलिज्म आया है। सो हम पढ़ लेते हैं कि क्यों नहीं है। हिंदुइज्म में आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, सिंपल समझाने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि आइडियाज ऑफ कर्मा, धर्मा, पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, तो इसकी वजह से कैपिटलिज्म नहीं आया। इंडिया में क्या है ना, सब्सटेंस था जैसे मैंने बताया, बट स्पिरिट नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल बैरियर्स है इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम एंड स्पिरिचुअल बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ कर्मा एंड पुनर्जन्मा। कर्मा और पुनर्जन्म की वजह से, क्योंकि वहां पे ये बोला जाता ना कि भैया क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्शन करना, ब्राह्मण का काम है धर्म की रक्षा, धार्मिक अनुष्ठान करना, और वैश्य का काम है बिजनेस करना। तो एक डिवीजन हो गया, तो सब लोगों को सब काम करने की इजाजत नहीं थी, शूद्रा को बिल्कुल अनटचेबल्स किया हुआ था। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, इतना रिजिड है,
ठीक है ना, सबको सब करने की इजाज़त नहीं है, इंडिविजुअलिज्म में फोकस नहीं है, कास्ट सिस्टम पे फोकस है, स्ट्रक्चरल बैरियर है, और कर्म और पुनर्जन्मा है कि भैया कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलता है, ऐसा बोला जाता है। पुनर्जन्म आपका होता है, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा जो है ना नया जन्म ले लेती है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि आप गॉड की ग्लोरी में अपने आप को डिवोट कीजिए, यानी कि राम का भजन कीजिए, प्रभु के गुण गाइए, ऐसा हिंदुइज्म में बोला जाता है। तो बेसिकली दे बिलीव इन दी नोशन ऑफ दी कर्मा एंड पुनर्जन्मा। सो यू कैन रेड दैट मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस एट, ये टेम्परेरी है, इल्यूजनरी है। इट इज द वेलफेयर ऑफ द सोल और आत्मा विच इज इम्पेरिशेबल इमोर्टल इज मोर इम्पोर्टेंट इन हिंदुइज्म। तो आपको सोल को वो करना है, वर्शिप करनी है। सोल की वर्शिप कैसे होती है, सोल का खाना क्या है, भगवान का भजन। तो you need to devote yourself toward the worship of God rather than doing the material business or doing the your work like which is conducive for the generation of capitalism. wealth पे फोकस नहीं है, पैसा कमा के क्या करना है, सब यहीं रखा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए शांति की तरफ ध्यान दीजिए, पीस हारमनी एंड लव, पीस हारमनी, ब्रदरहुड, इस पे फोकस है। इस वजह से हिंदुइज्म में कैपिटलिज्म नहीं आया। जुडाइज्म मैंने बोला स्पिरिट है, ये स्पिरिट है, सब्सटेंस नहीं है, यानी कि उसके पास सब कुछ है। स्पिरिट यानी कि वो कहता है कि आपको मेटीरियल प्रोस्पेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वहां पे क्यों नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि दे आर सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्टर्स विच हैव स्कैटर्ड द ज्यूज। द एक्सोडस और मास माइग्रेशन ऑफ ज्यूज फ्रॉम देयर होमलैंड, जैसे इसराइल से इनका माइग्रेशन हुआ, जब आपको पता है कि ज्यू एंड अरब्स एंड ज्यूज का ये जो हिटलर जो थे, इन्होंने बहुत इनका इनका स्लॉटरिंग की थी ज्यूज़ की, जिसकी वजह से ये माइग्रेट हो गए थे अपनी होमलैंड से। तो ड्यू टू परसिक्यूशन लेफ्ट देम स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनके पास मटेरियल कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि वो उनके पास कम काम करने की मटेरियल प्रोस्पेरिटी तो उनका रिलीजन बोलता था, बट क्योंकि उनके पास मटेरियल कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि वो स्कैटर हो गए थे, पैसा नहीं, वो नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, इस वजह से उनके पास वो कैपिटलिस्ट नहीं बन पाए। कन्फ्यूशियनिज्म इन चाइना, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ पर भी सब्सटेंस है बट वो नहीं है, स्पिरिट नहीं है। द कन्फ्यूशियस एथिक जस्ट लाइक हिंदुइज्म डिड नॉट परमिट द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एज इट स्ट्रेस्ड अपॉन कलेक्टिव हार्मनी, ट्रेडिशनलिज्म एंड फैमिली। तो बेसिकली फैमिली को ज़्यादा फोकस करना है, ट्रेडिशनल रहना है, ज़्यादा गांव विलेज में रहना है, विलेज की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल आप जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं तो आयुर्वेद में फोकस करना है, ज़्यादा मटेरियलिज्म में फोकस नहीं करना, फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है, फैमिली को टाइम देना है। तो ये सब कन्फ्यूशियनिज्म में वो दिया, फोकस किया गया, इस वजह से यहाँ कैपिटलिज्म नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, उसने रिलीजन को तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली उसने रिलीजन को बोला कि स्पिरिट और सब्सटेंस के बेसिस पे उसने बताया कि इस वजह से यहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आया। बट उसने रिलीजन को भी डिवाइड किया था एसेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म में। एसेटिसिज्म जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी डिजायर्स को कॉन्कर करना है, सो मास्टरी ऑफ डिजायर्स, बट मास्टरी ऑफ डिजायर्स सिंपल। मिस्टिसिज्म बेसिकली रेजिग्नेशन, अपने आप को रेजिग्नेशन दे दिया अपना। बेसिकली रेजिग्नेशन होता है कि कंप्लीट रेजिग्नेशन मतलब आप सारी तमन्नाओं को आपने न्यौछावर कर दिया, कुछ भी तमन्ना नहीं है आपकी, कंप्लीट अपने आप को सबड्यू कर दिया। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। इनर वर्ल्डली रिलीजन, इनर वर्ल्डली मैंने आपको बदली बताया था कि यहीं पे रहते हुए, रिलीजन इज नॉट अबाउट सॉल्वेशन और सोसाइटी वर्शिप, इट इज अबाउट रेशनल बिहेवियर, कमिटमेंट टू वर्क टाइम मैनेजमेंट। सो इनर वर्ल्डली रिलीजन मैंने आपको बताया, दिस वर्ल्डली मतलब कि जहाँ पे आपको रेशनल बिहेवियर शो करना है, कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क होना चाहिए इस वर्ल्ड में रहते हुए। अदर वर्ल्डली मतलब इस वर्ल्ड की चीज़ों को खत्म कर दो, अदर वर्ल्डली यानी कि गॉड की तरफ फोकस करना है। सो एक्टिविटीज इन दिस वर्ल्ड वर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज द वर्ल्ड इज सीन एज ट्रांजिएंट अबाउट एंड इम्पेडिमेंट टू द स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सिंपल कि भाई इम्पेडिमेंट है, वो एक ऑब्स्टेकल है आपको स्पिरिचुअलिज्म अचीव करने के लिए। तो अदर वर्ल्डली में ये कहते हैं कि आपको गॉड की तरफ फोकस करना है, जो कि अदर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो रिलीजियस उसने वैल्यूज को 4 भागों में डिवाइड किया, मतलब स्पिरिट को उसने 4 भागों में डिवाइड किया, सब्सटेंस तो बोला ही, बट 4 भागों में स्पिरिट को भी डिवाइड किया रिलीजियस वैल्यूज को। इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म, इनर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म, अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म, अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म, और उसने रिलीजन्स को इन उसमें भी डिवाइड किया।
जैसे जुडाइज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म उसको उसने बोला इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ कि जुडाइज्म में भी स्पिरिट है, प्रोटेस्टेंटिज्म में भी स्पिरिट है, तो इसलिए इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म है वो। कि वो बोल रहा है कि इसी वर्ल्ड में रह के आपको रेशनल बिहेवियर शो करना है, वर्क को आपको वर्शिप करना है, और एसेटिज्म मतलब अपने डिजायर्स को कंट्रोल रखना है। इनर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मतलब कन्फ्यूशियनिज्म एंड ग्रीक रिलीजन को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिस इज इनर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म। अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म मतलब अदर वर्ल्ड मतलब आपको दूसरे भगवान पे फोकस करना है बट अपनी डिजायर्स को कंट्रोल रखना है। तो कैथोलिक वाले कहते हैं कि अपनी डिजायर्स को भी कंट्रोल रखना है बट आपको गॉड पे फोकस करना है। और अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मतलब टोटल आपको खत्म कर दिया, आपने कुछ तमन्ना नहीं रही अब आपकी जिंदगी में, दैट इज अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म। जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड टाओइज्म। टाओइज्म इज अ रिलीजन इन चाइना। सो दो रिलीजन है, कन्फ्यूशियनिज्म भी है और टाओइज्म भी है। तो इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो वो बोलते हैं कि दिस वर्ल्डली एसेटिज्म ऑफ जुडाइज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, जिसमें हार्ड वर्क भी है और एब्स्टेमियसनेस भी है। मतलब कि एब्स्टेमियसनेस मतलब कि आपने त्याग दिए डिजायर्स। So Judaism, unlike Confucianism and Hinduism, speaks of an ethic of mastery over the environment, not harmony. तो आपको environment को mastery करनी है, आपको rational behavior show करना है, तो इसलिए ये दोनों this worldly asceticism है, ये religions। other worldly asceticism of Catholic, जैसे मैंने आपको बताया कि mastery करनी है desires की, but इस वर्ल्ड में रह के नहीं, अदर वर्ल्ड में गॉड पे फोकस करना है। दिस वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मतलब कन्फ्यूशियनिज्म एंड ग्रीक रिलीजन। रेदर देन वर्क डू कंटेम्पलेशन प्रैक्टिसेस मतलब मेडिटेशन करना है, आपको काम नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, कंटेम्पलेशन प्रैक्टिस, हार्मनी, ट्रेडिशनलिज्म एंड फैमिली ऑब्लिगेशंस, इन पे फोकस कर रहा है ये बेसिकली। ठीक है, कन्फ्यूशियनिज्म जो है इन पे फोकस कर रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो दिस वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मतलब कि आपको कंटेम्पलेशन प्रैक्टिसेस करनी है, मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ फोकस करना है, योगा करना है। तो बेसिकली क्या है ना, मिस्टिसिज्म मतलब कि आपको टोटल रेजिग्नेशन करना है, भगवान की तरफ ध्यान देना है। और दिस वर्ल्डली का मतलब इसी वर्ल्ड में रहते हुए, यानी कि यहीं रहिए, इसी वर्ल्ड में रहिए, बिहेवियर आपका बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत फोकस्ड होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए बिहेवियर आपका, लोगों के लिए पीस होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, इसी वर्ल्ड में रहिए। बट आपको मेडिटेशन रखना है और आपको रेशनली मतलब आपको कर्म नहीं करना, वर्क नहीं करना। अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म में आपको वर्क भी नहीं करना है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड टाओइज्म टोटल रेजिग्नेशन, कि आपने सब कुछ त्याग दिया, त्यागना बेसिकली, दिस इज टोटल रेजिग्नेशन। सो हिंदुइज्म, लाइफ इज अ सिन एंड ए पर्सन शुड कमिट टू धर्मा एंड मोक्षा टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम, तो लाइफ को ही बोलते हैं सिन है। तो अदर वर्ल्डली, इसलिए इस वर्ल्ड में कुछ नहीं करना। From cycle of birth and rebirth, it promotes purusharth and non-asceticism and hence far away from the spirit of capitalism. Buddhism, it focuses on apigraha, that is non-possession of property. It considers desire the cause of suffering and hence annihilation, आपको सब desire खत्म करनी है and materialistic pleasure खत्म करना है, is key to salvation. Same जैसे हिंदुइज्म बोलता है। टाओइज्म बोलता है इट बिलीव्स इन मैजिक एंड मिस्टिसिज्म रेदर देन ऑन हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट टू ड्यूटी। तो मैजिक में बिलीव करता है। मिस्टिसिज्म मैंने बताया टोटल रेजिग्नेशन, आपको सब कुछ रिजाइन करना है, कुछ नहीं, आपको भगवान की तरफ ध्यान देना है, भगवान का भजन करना है और आपको कुछ नहीं करना। टोटल आपने त्याग दिया, सब त्याग दिया आपने, फैमिली त्याग दिया आपने ये वर्ल्ड त्याग दिया आपने, सब त्याग दिया, जाके हिमालय में जाके तपस्या करनी है। दैट इज अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म। और दिस वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मतलब यहाँ पे ही बैठ के मेडिटेशन योगा करना है, अपना कर्म करना है, बट मेडिटेशन योगा करते हुए आपको अपना कर्म करना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मेंस में आया था, आईएएस सिविल सर्विसेज मेंस में सम 1-2-3 years बैक, that you have to distinguish between fact and value in Weber's theory of religion. So I have put one slide related to this one in my lecture. So you should understand that what is fact and what is value. Simple. इसकी डिटेल हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बट आप इसके एक एक दो लाइन मैंने इसके ऊपर लिखी हैं, तो आप पढ़ लीजिए इसको। फैक्ट इज रिगार्डेड एज एम्पिरिकली वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेटा यूनिवर्सल एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, दे आर रियल एंड इनकंट्रोवर्टिबल, दे आर रियल हैं, वो रियल है और इनकंट्रोवर्टिबल हैं। इट हैज इट्स ओन, इट हैज इट्स ओनली ओन,
सो इट इज OW, एन ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, एंड रिमेन सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन ऑल सिचुएशंस. सो इट रिमेन सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स. ओके. वैल्यूज, सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होंगी, अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रेफरेंसेस, बायसेस एंड बिलीव्स. ओके. दे गाइड आवर एक्शन. इस ये वैल्यूज जो है हमारी गाइड करती हैं हमें एक्शन को गाइड करती है हमारे गोल्स को, मीन्स को, सबको गाइड करती हैं वैल्यूज. सो दीज आर दी वैल्यूज. वैल्यूज आप समझ लीजिए, जैसे वैल्यू होती है कि आपकी कि आपको ब्राइब नहीं लेनी है, करप्शन नहीं करना है, दैट इज़ योर वैल्यू. तो आपको बिल्कुल ट्रुथ की तरफ फोकस रखना है, चाहे आपको कितनी हार्डशिप्स आए, तो दैट इज़ योर वैल्यू. तो दैट इज द सब्जेक्टिव. कोई आदमी हो सकता है करप्शन करे, कोई नहीं करे, तो दैट इज योर वैल्यू. फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सन इज राउंड और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज अ फैक्ट. ओके. तो द फैक्ट एंड वैल्यूज. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स एंड व्हाट आर द वैल्यूज इन वेबर्स थ्योरी. सो वेबर्स कहता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने कैपिटलिज्म को जनरेट किया, बट प्रोटेस्टेंट एथिक्स वेबर कहता है कि दैट इज अ मैक्रो. मैक्रो मतलब दैट इज द मोस्ट मैक्रो समझ लीजिए आप, बड़ी चीज कोई एक है ना, एक पूरा एक एथिक्स. सो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो होते हैं ना, पूरा रिलीजन का सहारा है. सो देर आर द मैक्रो एंड दे आर दी फैक्ट्स. सो दे आर दी फैक्ट्स इन दी थ्योरी ऑफ रिलीजन की. प्रोटेस्टेंट एथिक्स की जो वैल्यूज हैं, दे आर बेसिकली दी फैक्ट्स. तो ये फैक्ट्स हैं, बट इससे इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ लोगों में. दैट इज दी वैल्यू बीइंग इंट्रोड्यूस इन दी माइंड ऑफ पीपल. सो दैट इज दी वैल्यू. एंड क्या इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म में बोला गया है भगवत गीता में कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. ठीक है. तो दैट इज दी एथिक्स, दैट इज दी मैक्रो पार्ट, दैट इज दी फैक्ट कि बोला गया कर्म करो फल की इच्छा मत करो. इससे इंडिविजुअल सिस्टम क्या हुआ कि मैं एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप कर्म करेंगे, आप तैयारी करेंगे, बट आप फल की इच्छा नहीं करेंगे. इवन आप फेल हो जाएंगे तब भी आप तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि भगवान कभी ना कभी आपको फल जरूर देगा आपके कर्म का. तो आप ये जरूर सोचते हैं कि फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म केवल आपके हाथ में है, तो आप कर्म करते चले जाते हैं इन स्पाइट ऑफ. सो दैट इज योर इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम. इससे इकोनॉमिक बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. इकोनॉमिक बिहेवियर आ गया जैसे इस प्रोटेस्टेंट एथिक्स से. सिमिलरली इसमें आपका बिहेवियर चेंज हुआ कि आप हार्ड वर्क करते ही जाते हैं. दैट इज योर इकोनॉमिक बिहेवियर. एंड इससे क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है. अब इसमें क्या आएगा, इससे कंपटीशन इंट्रोड्यूस होगा, और आप भी डिमोटिवेट नहीं होंगे. आप हमेशा सोसाइटी में डिमोटिवेट नहीं होंगे. सोसाइटी हमेशा आप आगे की तरफ सोचेंगे, क्योंकि आप कभी फेलियर से झिझकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि फल आपके हाथ में नहीं है. तो सिमिलरली प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया, विच इज अ फैक्ट. सो द इंडिविजुअल सिस्टम एंड द इकोनॉमिक बिहेवियर इज द वैल्यू, while the ethics and the capitalism are the facts. So basically they are the facts. So this is how these are the facts, and the individual value system and economic behavior which is being introduced is the value. So this is how you can distinguish between fact and value in Weber's theory of religion. So you can see this slide again and again. If you have any query in this slide, you can put your comments in the lecture. Put your comments and I will definitely reply. So now we will study the contemporary relevance of Weber's theory of religion. So this is the contemporary relevance. So contemporary relevance is you can directly read out from this one. So मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको. वो कहते हैं वेबर की रेलिवेंस आपको समझनी है कि आज कितनी रेलिवेंस है, कि क्या वेबर ने बोला है कि रिलीजन से कैपिटलिज्म आ सकता है, तो क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आपको समझना है. तो वेबर कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ वेबर इज वेरी मच रेलिवेंट. हम कह रहे हैं कि वेरी मच रेलिवेंट है. क्यों है? हाउएवर इज ऑब्जर्वेशन अबाउट द नॉन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया इज फार फ्रॉम करेक्ट. थ्योरी जरूर उसकी करेक्ट है, बट उसने जो ऑब्जर्व किया ना इंडिया के बारे में कि हिंदुइज्म से कैपिटलिज्म नहीं आएगा, तो वो गलत है उसकी ऑब्जर्वेशन, बट उसकी थ्योरी जरूर रेलिवेंट है इंडिया में. द सोशोलॉजिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट हैं नंदा, फीमेल सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने एग्जामिन किया है द रोल ऑफ हिंदुइज्म इन द राइज ऑफ न्यू हिंदू नेशनलिज्म एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ मिडिल क्लास. तो उन्होंने हिंदुइज्म का रोल समझा है कि उससे कैसे मिडिल क्लास की प्रोस्पेरिटी और नेशनलिस्ट फीलिंग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं देश के अंदर. तो हमें पढ़ना है प्रोस्पेरिटी कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, बट उसने दोनों चीज़ों की बात की है कि नेशनलिज्म में इंट्रोड्यूस हुआ है रिलीजन से, प्लस प्रोस्पेरिटी ऑफ मिडिल क्लास. तो सेंटर फॉर स्टडी, उन्होंने एक रिपोर्ट को भी इसमें अपने ऑब्जर्वेशन में कोट किया है,
उसने रिपोर्ट में कहते हैं कि अर्बन एजुकेटेड इंडियंस आर मोर रिलीजियस देन देयर रूरल एंड अनएजुकेटेड काउंटर पार्ट्स। तो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस जो है मोर ज़्यादा रिलीजियस हैं अपने रूरल एंड अनएजुकेटेड काउंटर पार्ट से। तो इससे वो ये कह रहे हैं कि ये स्टडी को उन्होंने आधार रखते हुए बोला है कि क्योंकि अर्बन में ज़्यादा लोग पैसे की तरफ फोकस करते हैं और वो ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन जरूर है कैपिटलिज्म और रिलीजन में। सो द मिडिल क्लास इज सीन एज मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स। शी सेज दैट कि मिडिल क्लास ज़्यादा अट्रैक्टेड है वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस बिकॉज द वर्शिप विल लेट स्टे नीड्स टू बी फुलफिल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो उससे उनकी जो तमन्नाएं हैं वो पूरी होंगी। उन्हें कार चाहिए तो कार मिलेगी, उनको घर चाहिए तो घर मिलेगा, उनको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू नंदा, पीपल आर बिकमिंग मोर रिलीजियस बिकॉज ऑफ देयर नीड फॉर मोर एंड मोर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। ट्रेडिशनल हिंदुइज्म पहले हिंदुइज्म था विच एक्चुअली प्रीच फॉर रिनंसिएशन ऑफ मेटेरियलिज्म। उसने बोला था ना कि मेटेरियलिज्म छोड़ दो, कोई रखा नहीं है। नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर हिंदुइज्म इन विच, तो इट इज नॉट मोर, इट इज बट एक्चुअली इट इज न्यू हिंदुइज्म। सो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू हिंदुइज्म इन विच डिजायर्स आर नॉट बैड बट अ मैनिफेस्टेशन। तो ये कह रहे हैं कि न्यू हिंदुइज्म में डिजायर्स खराब नहीं है, बट इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी दैट मोटिवेट पीपल टू वर्क मोर हार्ड एंड एक्यूमुलेटेड मोर एंड मोर वेल्थ। तो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है हिंदुइज्म, जो नया हिंदुइज्म हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो। तो ये बोलती हैं कि पोस्ट हिंदुइज्म वैल्यूज है, दे प्रमोट बिजनेस फ्रेंडली आइडियोलॉजीज। वो बिजनेस फ्रेंडली आइडियोलॉजीज प्रमोट कर रही है एंड ऑल्सो एडवोकेट्स दैट मिडिल क्लास कंज्यूमरिज्म कैन बी स्पिरिचुअली बैलेंस्ड बाय परफॉर्मिंग द एक्स्ट्रावेगेंट रिचुअल्स। सो जो हिंदुइज्म है, पोस्ट हिंदुइज्म एथिक्स हैं, वो एडवोकेट करते हैं दैट मिडिल क्लास कंज्यूमरिज्म कैन बी स्पिरिचुअली, कि मिडिल क्लास आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो वो स्पिरिचुअली भी बैलेंस करता है मिडिल क्लास अपने आप को। कैसे? बाय परफॉर्मिंग दी एक्स्ट्रावेगेंट रिचुअल्स। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स लोग बहुत परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम में मिडिल क्लास। वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अर्न कर पाएँ। एक्स्ट्रावेगेंट, उससे बहुत पैसा खर्च करते हैं। मॉडर्न वर्जन्स ऑफ हिंदुइज्म thus legitimates the position of modern middle class and allow them to adjust to globalized consumer capitalism। तो वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्जन ऑफ हिंदुइज्म है वो लेजिटिमेट कर रहे हैं मिडिल क्लास की जो बिहेवियर है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसको लेजिटिमेसी हिंदुइज्म का मॉडर्न वर्जन दे रहा है एंड अलाउ दैम टू एडजस्ट टू ग्लोबलाइज कंज्यूमर कैपिटलिज्म। इन दिस वे न्यू वर्जन्स ऑफ हिंदुइज्म प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बाय लेजिटिमाइजिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो एडवोकेटिंग द कंज्यूमर कल्चर अमंग द मिडिल क्लास। आप में इसमें ये भी देख लीजिए, इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ religious expressions have emerged in society which are conducive for resurgence of a capitalist acumen in society। so इंडिया में कह रहे हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, नंदा ही नहीं बोल रही हैं, ये मैंने अपने तरफ से कुछ स्टडी किया है तो मैंने लिखा है दैट इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ न्यूली। अब क्या है ना, न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इनसिक्योर है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है ना, बहुत डायनेमिक क्लास है, कभी वो पुअर बन जाती है, कभी रिच में आ जाती है, और फ्लक्चुएशन है, तो इसलिए बहुत ही इकोनॉमिकली इनसिक्योर है और उसकी एस्पिरेशंस भी बहुत हाई हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशंस हैव इमर्ज्ड इन सोसाइटी विच आर कंड्यूसिव फॉर रिसर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमेन इन सोसाइटी। तो बहुत रिलीजियस एक्सप्रेशंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उस मिडिल क्लास की इनसिक्योरिटी की वजह से। क्या? ऑन वन हैंड डिफरेंट स्पिरिचुअल गुरुज हैव इमर्ज्ड, वो बहुत स्पिरिचुअल गुरुज को मानती हैं विच हु आर एंगेज्ड इन डूइंग बिजनेस, और वो स्पिरिचुअल गुरु जो है ना, दे आर एंगेज्ड इन डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग मनी इन द नेम ऑफ गिविंग सल्वेशन टू दोज हु आर इकोनॉमिकली इनसिक्योर। तो इससे क्या है ना, जो गुरुज हैं उनको पैसा मिल रहा है, वो पैसा कमा पा रहे हैं इससे। तो इससे क्या है ना, बहुत सारे जो सो कॉल्ड जो गॉडमैन है ना हमारे सोसाइटी में, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है बहुत ही इकोनॉमिकली इनसिक्योर है। तो इससे क्या है ना, रिलीजन इज इनडायरेक्टली लीडिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। प्लस ऑल्सो ऑन द अदर हैंड द न्यू रिलीजियस एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड हार्ड वर्क हैव इमर्ज्ड। इससे क्या है ना, और वो गुरु क्या बोलते हैं, गुरुजी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि काम करो बेटा, कर्म करो, पैसा कमाओ, ताकि आप अपने परिवार को खुश रखो। तो ऑन दी अदर एंड द न्यू रिलीजियस एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड हार्ड वर्क हैव इमर्ज्ड इन विच पीपल सीक सेल्फ अश्योरेंस इन अचीविंग द high goals of market and pursuit of excellence. Okay, so the religious ethics of development and hard work have emerged in the middle class people who now seek self assurance in achieving
तो अगर आप एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड में, तो जैसे आप आईएएस बन गए, आप जो है बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे पहुंच गए, जैसे आप दिखाते हैं ना, आप तो बोलते हैं ना पंडित जी कि आप तो राजयोग करेंगे, तो बेसिकली क्या है, रिलीजन कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एश्योरेंस दे रहा है कि अगर आप एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड्स में और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत हाईली सक्सेसफुल बनेंगे और आप इससे भगवान का बहुत कृपा मिलेगी आपको, मतलब गॉड्स कृपा और गॉड की आपके प्रति जो यू कैन से दी कृपा ऑफ गॉड towards you basically is reflected in the how much wealth and how much wealth you have earned, and how much how much on higher कितनी हायर पोस्ट पे आप हैं, और how much excellence you have done in your respective field. So in this way it can be said that Weber's theory of religion is very much relevant in understanding the contemporary Indian society in terms of understanding the ethos of middle class and the prevalent consumerism as the offshoot of capitalism. तो मिडिल क्लास क्या है ना, मिडिल क्लास को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है, प्लस मिडिल क्लास पैसा कमा रहा है तो कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्लस वो बहुत ज़्यादा खरीद रहा है सामान, खरीद भी रहा है ना सामान, वो लोगों को बहुत सामान खरीद रहा है क्या है, तो इससे क्या है ना, प्रमोशन हो रहा है लोगों का, फैक्ट्रीज का, और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकें, तो इससे कैपिटलिज्म का रिसर्जेंस हो रहा है हमारे देश में और हिंदुइज्म की वजह से। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं इस आंसर को, कि मिडिल क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीजन को फोकस कर रहा है ताकि वो एक्सेल कर पाए अपनी फील्ड में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए, और साथ में वो कंज्यूमर भी है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है, वो गॉड्स को फॉलो करता है, गॉडमैन जो सो कॉल्ड गॉडमैन है, एंड स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करता है। तो इससे क्या है ना, इन स्पिरिचुअल गुरुज की भी दुकानें चल रही हैं, प्लस वो क्योंकि कंज्यूमर है तो जिनका सामान वो खरीदता है, इससे पूरे इकोनॉमी में जो है पैसे का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, इससे जिनका सामान वो खरीदता है, इससे क्या है ना, कैपिटलिज्म इज बीइंग रिसर्च्ड due to the ethos. So you can write the ethos of the religious expressions of people which led them towards to excel more and more, plus the ethos of the consumerism in the middle class led toward the resurgence of capitalism in the society. So middle class कैसे इतना वो हुआ है, कैसे एक्सेल कर रहा है और कंज्यूमर बन रहा है, क्योंकि ये इट इज़ द रिलीजियन विच इज़ बीइंग एडवोकेटिंग दैट यू शुड एक्सेल इन योर फील्ड। आप जितना हाई पोस्ट पे पहुंचेंगे, जितना पैसा कमाएंगे, उतना भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कृपा ऑफ भगवान, कृपा ऑफ गॉड, और दी कृपा की आप इंग्लिश एक बार देख लीजिए, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फ्रूट ऑफ वट एवर वर्क हैव यू डन, ओके, द कृपा ऑफ गॉड। आप इनको कोट कर लीजिए अपने एग्जाम में। कुछ आपको डाउट है तो यू कैन put your comments in the comment box, and I will reply accordingly. So this is the lecture now, and in the next lecture we will be studying the Marx theory and its criticism and the relevance of Marx theory, plus other theories also. So after Marx I will put one lecture and two lectures of having difference between these Weber, Durkheim and Marx sociologists regarding the religion. Okay. So till the time I will put my next lecture. Thank you very much.